नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। चक्रवात में घायल बच्चों को देखने सिलीगुड़ी नर्सिंग होम पहुंचे अभिषेक बनर्जी, विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। शुभेंदु अधिकारी के जलपाईगुड़ी मेडिकल पहुंचने पर मरीजों के परिजनों ने किया गेट बंद, पुलिस को घेरकर किया विरोध प्रदर्शन। बहुजन समाज पार्टी के दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार मोहम्मद फैजल अली ने आज दार्जिलिंग जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा किया। जलपाईगुड़ी में तूफान से हुई तबाही पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने जताया दुख, बोले प्रभावितों को हर संभव मदद कराई जाएगी उपलब्ध। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जलपाईगुड़ी में घायल बच्चों को देखने सिलीगुड़ी नर्सिंग होम पहुंचे अभिषेक बनर्जी, विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी कल जलपाईगुड़ी के काल बैसाखी की तबाही में घायल हुए लोगों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उनके साथ सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, राजगंज के विधायक खगेश्वर रॉय भी मौजूद थे। दूसरी ओर उन्होंने राज्यपाल सीवी आनंद बोस और विपक्षी के नेता शुभेंदु अधिकारी पर जमकर आलोचना की। তার কারণ দুটো বাচ্চা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। একজনের বয়স প্রায় 14 বছর, ময়নাগুড়ির বার্নিশ জিপি একটা ছেলে ভর্তি রয়েছে, 14 বছর বয়স, ওর নাম রোহিত। আর ওখান থেকেই কিছুটা দূরে আরেকটা পরিবার, এবং সেখানে দেওয়াল এবং ছাদ ভেঙে পড়ে একটা 2.5 বছরের ছোট্ট মেয়ে, ওর নাম পিউ। দুজনেই আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে একদম ঠিক হয়ে বাড়ি ফিরবে। এখানে ডক্টর মলয় চক্রবর্তী, যিনি নিজে উদ্যোগ নিয়ে তৎপরতার সাথে এই দুজনের ট্রিটমেন্ট করেছেন, একটা অস্ত্রোপচার উনি নিজেই করেছেন। আমি ওনার সাথেও কথা বললাম, এবং পরিবারের লোকেরা যারা ছিল, বিশেষ করে পিউর মা বাবা, সবাই দিন আনে দিন খায়, এবং তার মেয়ের শারীরিক এই পরিস্থিতির জন্য তিনি তারা খুবই উদ্বেগজনক। আমি ওনাদের অনুরোধ করেছি যে ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, এবং যারা এখানে অস্ত্রোপচার করেছেন এবং পুরো মেডিকেল ফ্যাকাল্টির যারা দায়িত্বে রয়েছেন, সবার উপর ভরসা রাখতে, এবং 2 দিনের মধ্যে 3 দিনের মধ্যে চিকিৎসার যারা দায়িত্বে রয়েছেন, ডাক্তার নার্স সহ, আমি সকলের সাথে কথা বললাম। এমনি তাদের ভাইটাল প্যারামিটার শরীরের স্টেবল রয়েছে, অক্সিজেন স্যাচুরেশন হোক বা প্রেশার হোক বা পালস হোক, এগুলো স্টেবল রয়েছে, এগুলো নর্মালি রয়েছে। আশা করছি 2-3 দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ যখন হয় এটা কারোর হাতে থাকে না, কিন্তু তারপর কিভাবে সেটা মোকাবিলা করে সেটা আমাদের সকলের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के जलपाईगुड़ी मेडिकल कॉलेज दौरे को लेकर दिखी काफी उत्तेजना। लोगों ने कहा राजनीति करने आए हैं। मरीजों के परिजनों ने मेडिकल गेट किया बंद, पुलिस को घेरकर किया विरोध प्रदर्शन। परिजनों का कहना है कि वह राजनीति करने आए हैं। आवास योजना का फंड केंद्र ने रोक दिया है। अगर फंड मिला होता तो पक्का घर बना होता, जो तूफान से भी नहीं टूटता। लोगों ने विरोध प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता ने भी नाराजगी जताई, जिससे माहौल काफी सरगर्म हो गया। হসপিটালটা কি রাজনীতি করার জায়গা না ট্রিটমেন্ট পাওয়ার জায়গা? এটুকু সাধারণ প্রশ্ন আমি করে যাচ্ছি যে কেন গেটটা বন্ধ, কেউ সদুত্তর দিচ্ছে না। দেখুন আপনারা কত বয়স্ক লোক দাঁড়িয়ে আছে, আমি শুধু নিজের একার জন্য বলছি না। আর শুভেন্দু এটা লোকসভা ভোট, তার জন্যই এসছে। কালকে আপনারা জানেন জলপাইগুড়িতে একটা ঝড় হয়েছে, ঝড়ে 5 জন লোক মারা গেছে, কিছু লোক আহত হয়েছে। আমারও একজন আত্মীয় আছেন দূরে, তো জানি ওটার খোঁজ নেওয়ার জন্য এখানে যেহেতু সামনে লোকসভা ভোট, মিডিয়া ফুটেজ নেওয়ার জন্য আসছে। আর আমি যদি একটা প্রশ্ন তুলি যে এই মানুষগুলো ঘর ভাঙছে ঝড়ে, আজকে বছরের পর বছর ধরে আবাসের টাকাগুলো আটকে রাখছে। যদি আবাসের টাকাগুলো দিত, মানুষগুলো পাকা বাড়ি থাকতো, তাহলে ঝড়ে ঘরটা ভাঙতো না, তাহলে মানুষগুলো মরতো না, এত লোক আহত হতো না। তো সেই সময় শুভেন্দু অধিকারী, আমাদের এখানে যে উত্তরবঙ্গে 18 জন এমপি আছে বিজেপি, তাদের মনে পড়েনি মানুষের কথা? আজকে এখানে হসপিটালে এসে মানুষের সামনে মিডিয়ার ক্যামেরার সামনে ছবি তুলে ফুটেজ নিচ্ছে, রাজনীতি করতে আসছে। আবাসের টাকাগুলো যদি আগে দিয়ে দিত, মানুষ পাকা ঘর পেয়ে যেত, আজকে ঝড়ে ঘর বাড়ি ভাঙতো না। তারপরও ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে মানুষগুলোকে আটকে রেখেছে গেট বন্ধ করে। কি কারণ বুঝতেই পারছি না। এরা মানুষের ভালো চায় না, নিজেদের রাজনীতি করার জন্য মানুষ মারতে চায়। রোদের মধ্যে লাইনে দাঁড়িয়ে আছে, আপনি দেখুন কত বয়স্ক লোক, মহিলারা দাঁড়িয়ে আছে ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে।
बहुजन समाज पार्टी ने दार्जिलिंग संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार मोहम्मद फैजल अली ने आज दार्जिलिंग जिला कलेक्टर कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया। अली ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उन्हें दार्जिलिंग से पार्टी का टिकट दिया था। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में यह कहते हुए कि वह विभिन्न मुद्दों पर चुनाव में खड़े हुए हैं, जिनमें गोरखाओं के लिए एक अलग राज्य गोरखालैंड का गठन, सिलीगुड़ी को एक जिला बनाने की आवश्यकता और अन्य मुद्दे शामिल है। देखिए, आज हमने बहुजन समाज पार्टी की ओर से, बीएसपी की ओर से हमने जो है नामांकन अपना जो है यहाँ नॉमिनेशन हमने किया है। और देखिए, हमारे मुद्दे जो हैं और दार्जिलिंग हिल्स जो है खासकर गोरखालैंड को लेकर के जो है बहुत सालों से जो है डिमांड हो रहा है अलग राज्य को लेकर के। तो वो मुद्दे तो हमारे वो मुद्दे हैं ही। लेकिन मैं बता दूं आपको कि सिलीगुड़ी को जो है हम लोग जो है जिला बनाने का जो है मांग हम लोग करते हैं। हमारा ये डिमांड, ये भी हमारा मुद्दा है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे गोरखा समुदाय को बरगलाने का काम किया है, मुंगेरी लाल के हसीन सपने उन्होंने दिखाए हैं कि गोरखाओं का सपना हमारा सपना है, और उन सपनाओं का अभी तक जो है कोई निराकरण, कोई भी जो है सोल्यूशन नहीं हुआ है। उनके जो सांसद हैं वो 3 बार सांसद यहाँ चुने गए, यहाँ के आवाम ने उनको चुना, लेकिन कोई भी चीज़ नहीं हुआ। सिर्फ कागज़ पे हर 5 साल पे गोरखालैंड यूटी या इस तरह का जो है कोई भी ना कोई एक्टिविटी चलती रही है। अब हम यहाँ की आवाम से आह्वान करते हैं, हमारा अनुरोध है गोरखाली से, हमारे और भी जो समाज के लोग हैं, कि आप लोग सोच समझ के अपना वोट करिएगा। और जो ये जो मुद्दे हैं, और मुद्दे पे ही जो है वोट दिया जाता है। तो शिक्षा है, कृषि है, हेल्थ सेक्टर है, बेरोजगार हमारे दार्जिलिंग हिल्स में सबसे ज़्यादा है। अगर कोई भी हमारा गोरखा समुदाय अगर बाहर दिल्ली बॉम्बे कहीं काम करने के लिए जाता है तो लोग सोचते हैं कि वो नेपाल से आया है, लेकिन ये लोग नहीं जानते कि गोरखा समुदाय भी हमारे इंडिया में रहता है और 1.5 करोड़ की आबादी जो है हमारे गोरखा समुदाय का है। तो हम उनके सम्मान की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, और हमारे मुद्दे हैं, और मुद्दे के बीच राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने तूफान से तबाह जलपाईगुड़ी का दौरा किया। वह आज सुबह हवाई मार्ग से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचे। वहां से वह सड़क मार्ग से जलपाईगुड़ी के लिए रवाना हुए। जलपाईगुड़ी पहुंचकर राज्यपाल तूफान में मारे गए लोगों के परिजनों और अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। इस बीच राज्यपाल ने बताया कि हम सभी जलपाईगुड़ी की हालातों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संसाधन प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों और सचिव के साथ विस्तार से चर्चा की गई है। I would like to assess the situation for myself. That is why I have come here. I will visit the field, talk to the people affected, and also share the experience of those who underwent the tragedy. I will also try to see the welfare of those who are injured, crops damaged. Then I will contact the National Disaster Management Authority and all other agencies that are involved in relief operations. I am already in touch with Delhi on this issue. After visiting the places and interacting with the people, then I will tell you my assessment of the situation. Sir, one more thing, sir. I just want to ask one more thing. That is, violence still continues in Port Bihar, sir. Yesterday, minister allegedly attacked by BJP. So, what's your reaction? You have visited also the region. The violence continues. Fight against violence will also continue with vigor. We will put down violence at any cost. It's going to be a long game, but we will finish it once and for all. There is no doubt about that. So, oppositions are asking more and more paramilitary forces deployment in the state to make the polls violence free. I am no one to comment on the demands of the political parties, particularly during elections. Do you think there is need more paramilitary forces? Let me make my own assessment after the field situation. I will certainly do whatever is expected of a responsible governor. शुभेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर जमकर हमला बोलते हुए कहा, मदद कम और फोटो सेशन ज्यादा हो रहा है। राज्य विपक्षी पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने राहत और बचाव कार्य पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि जलपाईगुड़ी में तूफान से प्रभावितों के मदद काम कम हो रही है, फोटो सेशन ज्यादा हो रहा है। मालूम हो कि कल रात में ममता बनर्जी के आने को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, वर्तमान में लोकसभा चुनाव है, इसलिए विशेष विमान से कल मुख्यमंत्री यहाँ पहुंची है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड तृणमूल को काफी पैसा मिला है। देखिए, जो काम इनिशियली किया एनडीआरएफ ने किया, बाकी काम धीरे धीरे हो रहा है।
फोटो सेशन ज़्यादा हो रहा है, रेस्क्यू रिहैब और जो रिलीफ देने का काम वो ठीक नहीं हो रहा है, ज़्यादा फोटो सेशन और भाषण हो रहा है। और क्या मिडनाइट में क्या काम है, इतना जल्दीबाजी का क्या है? हॉस्पिटल विजिट करना, जो डेथ विक्टिम है उनका फैमिली से मुलाकात सुबह तो हो सकता था, गवर्नर साहब ने किया, मैं जा रहा हूँ, मैं करूँगा, तब तो वोट नहीं था। ये तो वोट के लिए, ये तो सबका उत्तर बंग मालूम है। उत्तर बंग में कोई जो वेदर रिपोर्ट कौन उसको मॉनिटर करता है, वीडियो करता है। डिजास्टर होता है, साइक्लोन होता है, हड़प्पा बांध होता है, जो सिक्किम में कुछ दिन पहले हुआ, कोई फोरकास्ट और प्रिकॉशन कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से वीडियो, डीएम, एसडीओ, कोई माइकिंग कुछ है यहाँ, कोई मॉनिटरिंग है? दूसरा प्रदेश में मॉनिटरिंग है। अब हिमाचल में जाइए, उत्तराखंड में जाइए, जम्मू कश्मीर में जाइए, अरुणाचल प्रदेश में जाइए, किस तरीके से वेदर रिपोर्ट का मॉनिटरिंग और वेदर रिपोर्ट को पहले जनता को बीच एफएम चैनल के द्वारा माइकिंग करके जनता को जागरूक करना, अलर्ट करना, एक काम दूसरा प्रदेश में होता है। यहाँ कोई नहीं, यहाँ हादसा होने का बाद तू खींच मेरी फोटो। प्राकृतिक आपदा पर नहीं होता किसी का जोर, सिलीगुड़ी में बोले अभिषेक बनर्जी। आज वह बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरे और पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा 1500 घर बर्बाद हुए हैं, सभी प्रभावित लोगों के लिए राहत शिविर तैयार किया जा रहा है, बाद में राज्य सरकार उनके घर बनाने में विषय में सोचेगी। वहीं अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ हमला बोला, कहा बीजेपी ने उत्तर बंगाल में कोई विकास नहीं किया है। কালকে যে ঘটনাটা ঘটেছে আপনারা জানেন, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং ন্যাচারাল ক্যালামিটির ফলে, এবং ন্যাচারাল ক্যালামিটি আমাদের কারোর হাতে থাকে না, এবং যে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় এবং একাধিক এলাকায় বজ্রপাত সহ বৃষ্টি সহ যেভাবে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, কৃষি জমি থেকে শুরু করে ঘর বাড়ি, ফসল, লোকের থাকার জায়গা, এবং প্রায় 1500 বাড়ি ড্যামেজ হয়েছে। এখনো পর্যন্ত যে তথ্য আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, এবং 4 জন প্রাণ হারিয়েছেন, 2 জন আশঙ্কাজনক অবস্থায়, বিশেষ করে 2টি বাচ্চা, একজনের 2 বছর বয়স এবং একজনের 14 বছর বয়স। এরা শিলিগুড়ির মলয় হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। আমি এখান থেকে তাদেরকেই প্রথমে দেখতে যাব, কিন্তু ইতিমধ্যেই সরকারের তরফ থেকে প্রত্যেকটা মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে উদ্যোগ এবং তৎপরতা, সেটা ঝড়ের পরেই ইতিমধ্যেই কালকে রাত্রে আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মানুষকে বলেছেন যে যাদের বাড়ি ভেঙে গেছে বা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা কিছুটা সময় রিলিফ ক্যাম্পে থাকবেন এবং সেখানে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আপাতত কিছুদিনের জন্য করে দেওয়া হয়েছে রাজ্য এবং জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে। এবং যেখানে যা ক্ষয়ক্ষতিপূরণ দরকার, আমাদের রাজ্য এবং রাজ্যের সরকার তাদের পাশে রয়েছে, সর্বত্র দিয়ে তাদের পাশে থাকবে। কিন্তু এটা আমাদের কারোর হাতেই থাকে না। এই ঝড় বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ন্যাচারাল ক্যালামিটি যেটা। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सिलीगुड़ी के सालबाड़ी में घर हो अपना, क्या आपका भी है ये सपना? अंबरधुरा सालबाड़ी स्थित गोकुल धाम में आपको मिलेगा अति आधुनिक फैसिलिटीज के साथ 2 से 3 BHK फ्लैट। यहाँ आपको मिलेगा थीम्ड लैंडस्केप से लेकर ओपन एम्पी थिएटर, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, वॉकिंग लॉन, रूफटॉप सिटिंग एरिया और भी सुविधाओं से लेकर शानदार अपार्टमेंट तक। पंचनई गोकुल धाम शहर के सभी हिस्सों, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल जैसी जरूरी स्थानों तक आसान पहुँच। कॉल करें 9755420000 पर और बुक करें अपना 2 या 3 BHK अपार्टमेंट। लग्जरी की सर्वोत्तम ठिकाना गोकुल धाम में है। सिलीगुड़ी के लिए बड़ी खुशखबरी, अपनों के उपचार के लिए दूर जाने का दुख अब समाप्त। कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स सिलीगुड़ी में ही आपको मिलेगी प्रसिद्ध साउथ इंडियन डॉक्टरों की सेवा। जी हाँ, सही सुना आपने, सिलीगुड़ी के कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स आप साउथ इंडिया के प्रसिद्ध अस्पताल जैसे कि नारायण हेल्थ,
अपोलो हॉस्पिटल्स, VIMS हॉस्पिटल्स, मणिपाल हॉस्पिटल्स, मीनाक्षी मिशन हॉस्पिटल से आए डॉक्टर से अपनों का इलाज कराइए। साथ ही उच्च स्तरीय डायग्नोस्टिक सेवा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए कामती हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स, नियर वेगा मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9134343404। आपका स्वास्थ्य हमारी जिम्मेदारी। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी निस्के साथ हो पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गॅरंटीड र धेरै पुरस्कार हरू टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। ड्रॉ हुन्छ 20 अप्रिल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। पंजाब स्टेट डियर बैसाखी बम्पर 2024। If life is an art, then Dwarika Prime is a canvas. Wake up to the breathtaking view of lush green hills every morning. Experience state-of-the-art living with an open gymnasium and a yoga deck on the terrace. Conveniently located near the bustling business hub on Sevok Road. Ready to move in, budgeted flat. The baby pool, landscape garden, rooftop gazebos, children's play area, temple, community hall, and terrace garden. Spacious bedrooms for your comfort and relaxation. Dwarika Prime. Call 9733399970. पंजाब स्टेट डियर 200 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ 50 लाख गॅरंटीड पुरस्कार। टिकट को मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकट बाट। इस लड़की का पहले परफॉर्मेंस था सेरिब्रल पल्सी, तो ये होना ही था। इस लड़के का ऑटिज्म, बात नहीं कर पाता है। ADHD ये भी एक बीमारी है। सूत्रा के साथ वो सिर्फ सर ऊंचा करके खड़ा नहीं है, वो बहुत सा रास्ता आगे बढ़ चुका है। इस जगह पर हर एक बच्चों के मुंह पे खुशियां लाई जाती है। वो करता है और कर सकता है, तभी तो वो बच्चे आज अपने पैरों पे खड़े हैं, बात कर रहे हैं और बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। सूत्रा, पावर टू कॉन्कर। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे, जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है, और वो भी सिर्फ 6 रुपये में। नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बागडोगरा इलाके में टीएमसी प्रत्याशी गोपाल लामा ने घर घर जाकर किया चुनाव प्रचार। दार्जिलिंग लोकसभा क्षेत्र से अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार गोपाल लामा ने आज बागडोगरा इलाके में चुनाव प्रचार किया है। पहले अपर बागडोगरा स्थित हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने पैदल चलकर जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही घर घर जाकर लोगों से मिले और अपने पक्ष में वोट मांगा। उनके साथ दार्जिलिंग तृणमूल कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पापिया घोष भी साथ में रही। खोरीबाड़ी में महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के विरोध में मार्च निकाला गया। सिलीगुड़ी खोरीबाड़ी के पानी टंकी स्थित कस्टम ऑफिस से एक विरोध मार्च निकाला गया। मालूम हो कि 25 मार्च को 4 युवकों ने घर में घुसकर एक महिला पर हमला कर दिया था और 26 मार्च को उन 4 के नाम पर
खोरीवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। आज अखिल भारतीय आदिवासी समाज के अध्यक्ष राधा मुंडा ने कहा, जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो तराई डुआर्स के लोग बड़े आंदोलन में शामिल होंगे और जरूरत पड़ी तो থানে কা ঘেরাও করেंगे। হোলির দিন সোমবার বিকাল 5টার সময় আমি বাড়িতে বাস বসাইছিলাম। ওই সময় আমার বাড়ি থেকে টাইনে বার করে আমারে মারছে তপন বৈরাগী, তপন মণ্ডল আর আশাপূর্ণ মণ্ডল আর নিকিঞ্জ মণ্ডল আর বিমলা মণ্ডল। তাদের নামে কি থানায় কিন্তু লিখিত অভিযোগ করেছেন? করেছি। ওদের খালি আসে আর ধরতে পারি না, এখান থেকে ঘোরাঘুরি করে ওদের কিছু হয় না। তো আজকে তো র্যালি করলেন, বিক্ষোভ করলেন, পরবর্তীতে কি আছে? আরো বিক্ষোভ করবেন যদি ধরা না পড়ে? করবো, আন্দোলন করবো। কি নাম আপনার? লক্ষ্মী সরেন, আন্দারজোর। আমার নাম হচ্ছে রাধা মুন্ডা, আমি অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ পরিষদ খড়িবাড়ি ব্লকের সেক্রেটারি। আজকে আমরা এখানে একটা র্যালি বাইর করেছি, কারণ হচ্ছে হোলির দিন 25 তারিখে একটা মহিলাকে আন্ধারি জোতে, যার নাম হচ্ছে কে নাম সফি সোরেনকে 4 জন মিলিয়ে 4টা ছেলে ওকে মারধর করেছে। এটা কিন্তু জঘন্য অপরাধ করেছে ওরা। একটা লেডিসকে 4 জন ছেলে মেরেছে, ওটা কোন জায়গার বাহাদুরি? আমরা ভারতবর্ষে মহিলাদেরকে পূজা করি, মহিলাদেরকে মন্ত্রমন দিই, মহিলাদের আমার মা হচ্ছে, মহিলা আমার বোন হচ্ছে, ওকে আমরা মান সম্মান দিই। কিন্তু আজকে যে এখানে যে হয়েছে এটা খুবই কিন্তু অপমানজনক। সেই জন্য আমরা এখানে একটা মিছিল বাইর করেছি। আর যে 4 জন লোককে এখনও কিন্তু অ্যারেস্ট করা হয়নি, আমরা পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে আমরা বলছি তাড়াতাড়ি অ্যারেস্ট করুক, না হলে আমরা আগামীকাল একটা বিরাট আমরা আন্দোলন করব, আমরা চিন্তাভাবনা করতেছি। सिलीगुड़ी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी की मोबाइल फोन के साथ चोर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम रंजित मंडल, उम्र 35 वर्ष है। वह सिलीगुड़ी के विनय मोड़ का निवासी है। जानकारी के अनुसार रविवार को 23 नंबर वार्ड में रंजित मंडल ने एक घर में घुसकर लोगों को सोता देख मोबाइल लेकर फरार हो गया। इसके बाद वह रात को बागडोगरा इलाके में मोबाइल बिक्री करने के लिए पहुंचा था। इसी दौरान सिलीगुड़ी थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही चोरी हुआ मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया। आरोपी को आज सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया है। मालदा में स्थित प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय गौरबंग विश्वविद्यालय के कुलपति को उनके पद से हटाने का आदेश जारी किया गया। आरोप है कि राज्यपाल ने गौरबंग विश्वविद्यालय के कुलपति रजत किशोर दे को हटाने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने पत्र भेजकर यह निर्देश दिया। मामला प्रकाश में आते ही तृणमूल द्वारा संचालित संबंधित छात्रों और शैक्षणिक संगठनों के कुछ पदाधिकारियों ने राज्यपाल की इस भूमिका पर नाराजगी व्यक्त की है। मालदा में भीषण अग्निकांड में 30 से 35 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। पता चला है कि किसान के गेहूं के खेत में किसी ने सिगरेट या बीड़ी फेंक दी। परिणाम स्वरूप किसानों की फसल जलकर नष्ट हो गई। नुकसान की रकम कई लाख रुपए आकी गई है। जब ग्रामीणों व किसानों ने खेत में आग लगी देखी तो इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। साथ ही सभी ग्रामीण बाल्टी और घड़ा लेकर आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू पाया नहीं जा सका। किसान सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। সিগারেট বা বিড়ি খেয়ে ফেলে দিয়েছে, মোটরসাইকেলে বাইক নিয়ে যাচ্ছিল, তখন আগুনটা ধরে যেত। সম্ভাবনা সঠিক বলতে পারছি না। রাস্তার পাশেই এটা জায়গার নাম হচ্ছে ফিফটি গোল্ড মোড় বা এই যে পোলট্রি ফার্ম আছে, যেটাই মনে করেন, কাজী মোড়, যেটাই মনে করেন বাবু, মোটামুটি 35 থেকে 40 বিঘা মালিকের নাম কি? বললাম অমল 1 নম্বর, 2 নম্বর হলো মর্তুজা, 3 নম্বর হলো শাহনাজ কবির, 4 নম্বর হলো সম্রাট, 5 নম্বর হলো জাকির, 6 নম্বর হলো মামুন, 7 নম্বর হলো রেজাউল, 8 নম্বর হলো মর্তুজা, আরও ইত্যাদি। কী চাই আমাদের ক্ষতিপূরণ হচ্ছে, ক্ষতিপূরণটা দেওয়া হোক। আর কী চাইবো আর সরকারের কাছে, কী দেবে আর আমাদেরকে? আপনার নাম? হাসান, বাড়ি নওয়াদা। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में, केवल 6 रुपया में 1 करोड़। 6 रुपया में 1 करोड़ के 1 करोड केवल 6 रुपियाँमा? किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपियाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपियाँ। 6 रुपया में 1 करोड़, 1 करोड़ 6 रुपया में 6 रुपया। डेढ साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।